کہ حیدرآباد میں ایک بڑے جانی نقصان کے بعد انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ایل پی جی سلنڈرز کی 3 غیر قانونی دکانیں سیل کر دی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے جام فرید سے، بتائے گا جام فرید۔ جی گزشتہ شام کو جو سلنڈر واقع ہوا تھا اس کے بعد ضلع انتظامیہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی ہے۔ جو غیر قانونی ایل پی جی کے سلنڈر کے دکان ان کے خلاف، جن کے دوران جو ہے 3 دکاندار ہیں اور 3 شہری ہیں، ان کو گرفتار کر کے متعلقہ تھانوں میں بند کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پہ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر عالمگیر رانجانی کا کہنا ہے کہ یہ جو شہری ہے اور دکانداری ایل پی جی کی غیر قانونی جو ہے خرید و فروخت میں مصروف تھے، جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور 3 دکان سیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں مزید جو کارروائی ہے وہ بھی کی جائے گی اور جو یہ غیر قانونی سلنڈر ہے ان کو ٹھیک ہے، شہر کے دیگر علاقوں میں بھی اس حوالے سے کارروائی کی جائے گی۔ جہاں فرید اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ علاقہ غمگین ہے، لوگ سوگوار ہیں۔ اشوک شرما جائے وقت پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اشوک، آگاہ کیجیے۔ علاقے میں سوگ اور دکھ کا ماحول ہے۔ یہاں پر جو لوگ جمع ہیں، ڈیڈ باڈیز جو ہے یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچی ہیں۔ یہاں پہ لوگوں سے ہماری بات ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سول ہاسپٹل سے جو ڈیڈ باڈی تھے وہ جہاں پہنچیں گی، اس کے بعد ان کی نماز جنازہ اور تدفین کی جو رسومات ہیں وہ ادا ہوں گی۔ انہی شاہدین سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر گیس سلنڈر کی جو دکان ہے اس کے باہر ایک رکشہ کھڑا تھا، اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جیسے ہی کک ماری تو وہاں پر چنگاری نکلی تھی، جس کے بعد یہ آگ جو ہے وہ بھڑکی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو ضلع انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کے جو عملہ ہے وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیتے اور یہاں پر لوگوں کو بر وقت ریسکیو کیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ جانی نقصان کم ہوتا۔ اور حیدرآباد سلنڈر دھماکے کے 36 زخمیوں کو کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ سول اسپتال برنز وارڈ میں 23 شدید جھلسے ہوئے متاثرین لائے گئے۔ شدید جھلس جانے والے 17 افراد سول اسپتال برنز وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں انور خان۔ بعد میں سلنڈر دھماکے کے اندر شدید جھلس جانے والے افراد میں تھے، جن کی تعداد 36 تھی، انہیں کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 23 افراد سول اسپتال کے بس وارڈ لائے گئے تھے۔ شدید جھلس جانے والے ان افراد میں سے 6 افراد جو ہیں اب تک جہاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 17 افراد یہاں پر زیر علاج ہیں۔ بس وارڈ کے انتظامیہ کے مطابق بعض افراد کراچی کے نجی اسپتالوں کے اندر بھی زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت اور وزیر اعظم کی جانب سے واضح احکامات دیے گئے کہ یہاں آنے والے تمام افراد اور ان کے اہل خانہ کی مدد کی جائے۔ بس وارڈ کی انتظامیہ اس کے مطابق جو افراد اس وقت زیر علاج ہیں ان کی حالت بھی تشویشناک ہے، کیونکہ وہ افراد جو اس وقت زیر علاج ہیں ان کے جھلس جانے کی جو فیصد بنتی ہے وہ تقریباً 90 سے 95% ہے۔ جو بس وارڈ کے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ افراد جو کہ 50% سے زیادہ جھلس جائیں ان کے لیے صورتحال انتہائی تشویشناک بن جاتی ہے۔ NA48 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ حسین احمد چودھری سے مزید تفصیلات لیں گے۔ حسین، بتائے گا حکم نامے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی دیکھیں، مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اخباروں اور ٹی وی چینل پر اشتہارات کے باوجود فریقین عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کچھ فریقین کی عدم موجودگی میں یک طرفہ کارروائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ چند فریقین گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں ہوئے تھے۔ جو الیکشن ٹریبیونل ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریٹرننگ افسران کو پیرا وائز کمنٹ فارم 45, 6 اور 7 جمع کرانے کی آخری مہلت دی جاتی ہے، جبکہ NA48 کے جو ریٹرننگ افسر تھے نوٹس کے باوجود پیش نہ ہونے پر انہیں 15,000 جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ NA48 سے جیتنے والے امیدوار نے جواب جمع کرایا، فارم 45 جو ہے وہ جمع نہیں کروائے، لہٰذا انہیں دوبارہ آخری موقع دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45, 46 اور 7 کی تصدیق شدہ نقول سربمہر لفافے میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور مزید سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ حسین تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر کا آج تیسرا روز ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ 2 جون سے شہر میں گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہی ہیں عشرت خان۔ کی لہر کا آج تیسرا روز ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 62% ہے۔ جنوب مغربی سمت سے 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ دن کے اوقات میں یہی ہوائیں کم ہو کر مغربی سمت سے چلیں گی اور شہر میں چونکہ نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے حبس محسوس کی جائے گی اور گرمی کی شدت شہریوں کو زیادہ محسوس ہوگی۔ 2 جون کے بعد یعنی اتوار کے روز جو ہے ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ٹیمپریچر 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔
ज़ेर हिरासत तशद्दुद अम्बात इस्मत के केसेस FIA मुंतकिल कर दिए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने सदा सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। आबिद खान से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी आबिद, बताइएगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जो फैसला जारी किया उसमें कहा गया है कि हिरासत में मौत और तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से जो एक्ट है उसके फौरी नफाज को यकीनी बनाया जाए। FIA इस एक्ट से मुतल्लिक तहकीकात पर खुसूसी दायरा इख्तियार रखता है। पुलिस को हदायत की जाती है कि वो इस मामला से दूर रहे। अपने फैसले में अदालत ने करार दिया कि इतराफ़ जुर्म या सबूत हासिल करने के लिए मुलजिम पर किसी भी किस्म का तशद्दुद करना सख्ती से मना है। एक्ट के नफाज के मामले को बाज़ाब्ता पंजाब की तवज्जो में लाया जाए। इसके साथ साथ ये मसला वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़ीर दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान को भी पेश किया जाए। 2022 के एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और इसमें मज़ीद ताख़ीर को जो है वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अदालत ने करार दिया कि पुलिस हिरासत में तशद्दुद, मौत या असमत दरी के मुतालिक कोई भी शिकायत हो इसे फौरी तौर पर मुतल्लिका एजेंसी को जैसा में जो है वो रिपोर्ट किया जाए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने यह फैसला सुरैया बीबी की दरख्वास्त पर दायर किया, जिसमें तशद्दुद के हवाले से जो है वह तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। बहुत शुक्रिया आबिद खान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब जेम्स क्लेवरली से मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। बताएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, मुलाकात की है और इस मुलाकात में दोनों वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक किया जा सकेगा। इस इक़दाम से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने में भी मदद मिलेगी, जबकि मंशियात की रोकथाम, संगीन जराइम की तहकीकात और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम पर बाहमी ताउन भी मुमकिन हो सकेगा। इस हवाले से मुश्तरका जो स्टीयरिंग कमेटी है वो इस हवाले से इक़दाम करेगी। जब ये साइन हुए हैं उस वक्त कमेटी में दाखिला, नेशनल पुलिस ब्यूरो, बरतानवी हाई कमीशन और प्रोग्राम टीम के नुमाइंदे भी शामिल थे। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। पर आपको खबर दें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों में नतीजा खेज बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के लिए जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस इजलास की, अजहर फारूक से जानेंगे। जी अजहर, बताइएगा। जी, इस इजलास में वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की थी और वज़ीर आज़म चूँकि 4 से 7 जून तक चीन का दौरा कर रहे हैं, चीनी क़यादत के साथ उनकी अहम तरीन मुलाकातें हैं। इन मुलाकातों के एजेंडे के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है कि चीनी इंडस्ट्री की पाकिस्तान में सनद लगाने की तरगीब देने के हवाले से अमल जो है वो मुरतब किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। इस दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म को जो तैयारियाँ हैं तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। बताया गया कि पाकिस्तान से सनतकारों और सरमायाकारों और कारोबारी अफराद का एक वक्त भी वज़ीर आज़म जब चीन जाएगा, जो कि वहाँ पे चीन की जो कारोबारी बिरादरी है उसके साथ मुलाकातें करेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को हदायत की कि पाकिस्तानी के जो कारोबारी वक्त है उसको वहाँ पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि चीन के साथ तल्लुकात को बिलखसूस सरमायाकारी के हवाले से मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के जो इक़दाम हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये इस वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से अहम तरीन इजलास था जो कि सुबह आज सवेरे हुआ है, जिसमें तमाम तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात के लिए। उधर कंदकोट में 2 रोज़ कबल अगवा होने वाले पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई है। मौके पुलिस एहलकार अली रजा ने जागीरानी गैंग के मुतालबात तस्लीम करके उसे बाजियाब कराने की अपील की है। मां पीसी अली रजा लोही पुल पिकेट में जागीरानी सब लोही गैंग अगवा करे आहिनि। मांखे छॾा है न तो मांखे मारे छॾींदा। SSP बशीर बिरोही के अपील तो क्या इन्हनि जा जेके भी जायज़ मुतालबा आहिनि जागीरानी ऐं सब्ज़ोई गैंग जा, इन्हनि के मुतालबा पूरा इन्हनि जा कयो ऐं मांखे छॾायो उन्हनि खां मांखे मारे छॾींदा। मां त ॾींहुं राति तशद्दुद मांखे छॾायो, इन्हनि जो जेके भी मसला आहिनि हल कयो, मांखे मारे छॾींदा। कंहिंजे चवण ते करे इन्हनि ते जेके बम न वसायो। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको खबर दें कि मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव रोकने में नाकामी पर सरबराह कौमी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर शहजाद बेग मुस्ताफी हो गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे जहांगीर खान से। बताएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, डॉक्टर शहजाद बेग जिनको एक PTI दौर में एक आला शख्सियत की सिफारिश पर सरबराह कौमी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम तैनात किया गया था 2021 में,
उनसे मौजूदा हुकूमत नाखुश थी, जिस बिना पर उनकी कारकर्दगी से मायूस होकर हुकूमत ने उनसे इस्तीफा तलब किया था और इस्तीफा न देने की सूरत में उनको बर्तरफी की धमकी दी गई थी। अब ज़राए ने तस्दीक की है कि डॉक्टर शहजाद बेग अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वजारत सेहत को इरसाल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से शहजाद बेग की कारकर्दगी पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था, क्योंकि रवा साल पाकिस्तान में 3 पोलियो केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। 39 अजला जो हैं मुल्क के वो सीवरेज उनकी पोलियो पॉजिटिव हो चुकी है। 153 पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स रिपोर्ट हो चुके हैं। 2022 में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो ने वबाई सूरत इख्तियार की और अभी तक उसकी शक्ल जारी है। और डॉक्टर शहजाद बेग के दौर में ही अफगानिस्तान से पोलियो वायरस पाकिस्तान। ठीक है जहांगीर खान, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सियासी जमातों से राब्ते जारी हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच से मिलने पहुंच गई है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अब्दुल कादिर से, बताएगा अब्दुल कादिर। देखिए, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के मुल्की सियासी जमातों से राब्तों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है उन्होंने नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्हें अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने की दावत दी गई है। मुलाकात में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब भी शरीक थे, जबकि बाकी रहनुमा जो इस ग्रैंड अलायंस में मौजूद हैं वो भी पहुंचे हैं। नेशनल पार्टी के कायदीन भी शरीक थे और मुतफ़िक़ा तौर पर आगे बढ़ने के हवाले से जो लाइहा अमल है उस पर गौर किया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ज़िलाई इंतज़ामिया ने PTI को F9 में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इंतज़ामिया के जारी मुरासले के मुताबिक IB और स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट के मुताबिक F9 में इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने तमाम सियासी जमातों के F9 में इज्तिमा की मुखालफत की। तमाम मेंबरान की मुश्तरका राय है कि किसी को F9 में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए रवात में जलसे की इजाज़त दी गई है। PTI को रवात में जलसे की शाम 4 बजे से 7 बजे तक की इजाज़त है। इजाज़त नामा सिर्फ इज्तिमा के लिए है, धरने की इजाज़त नहीं है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास आज शाम वीडियो लिंक के जरिए होगा। इजलास में बानी PTI के केसेस और कानूनी मामलात पर गौर होगा। इस्लामाबाद में जलसे के मकाम के तयन पर भी मुशावरत होगी। बानी PTI के अकाउंट पर ट्वीट का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास आज शाम वीडियो लिंक के जरिए होगा। इजलास में बानी PTI के केसेस और कानूनी मामलात पर गौर होगा। इस्लामाबाद में जलसे के मकाम के तयन पर भी मुशावरत होगी। बानी PTI के अकाउंट पर ट्वीट का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पंजाब में खसरे की वबा फैलने का खदशा। गुज़श्ता रोज पंजाब में खसरे के 245 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात क्या है जानेंगे हसन हफीज से। हसन, बताएगा महकमा सेहत का इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, पंजाब में खतरे की वबा फूट पड़ी है और गुज़िश्ता रोज सुबह भर से खतरे से मुतासरा बच्चे जो है वो 245 रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस सामने हैं, जिसमें 45 बच्चों में खतरे की तस्दीक हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो एक बच्चे की जो है वो हलाकत सामने आई है। जो महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक खतरे से हलाक होने वाले बच्चे का ताल्लुक जो है वो फक्कर से है और फैसलाबाद गुजरांवाला में 22, खानेवाल से 28 बच्चों में खतरे की तस्दीक हुई है और रवां साल सूबे भर से खतरे के 2582 केसेस और 17 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं और लाहौर में खतरे से मुतासरा मरीज बच्चों की तादाद 296 हो गई है। बहुत शुक्रिया हसन हफीज तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वफाकी काबीना में शामिल ना होने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था। ABI न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, काबीना में शामिल न होने की वजूहात अब भी मौजूद हैं। CC के फैसले को वही फोरम तब्दील कर सकता है। उनका कहना था मुस्लिम लीग नून अशराफिया की जमात है, वो अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझती। पार्टी वफाकी काबीना में आ जाएगी? नहीं, वो तो हमारा तो फैसला ये था कि काबीना ज्वाइन नहीं कर रहे। वो तो पुराना था ना, अब नहीं। तो अभी तो कोई सेंट्रल कमेटी नहीं बुलाई गई है। हम 2 दिन हमारी सेंट्रल कमेटी बैठी थी, कोई 72 अरकान थे। मुझ पे इसलिए और ज्यादा प्रेशर था कि सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मिनट्स मुझे लेने पड़ते हैं। तो वो तो यूनानिमस फैसला हमारा था कि हम काबीना में नहीं जाएंगे और जाहिर है कि उस फैसले को सेंट्रल कमेटी का ही कोई फैसला तब्दील कर सकता है। वैसे तो कोई ज़रूरत हमें नज़र नहीं आती कि हम काबीना में जाएं।
मतलब जो रीजंस थी हमारी काबीना से बाहर रहने की, वो रीजंस अब तक कायम है। क्या थी? वहाँ हाथ बन जाते हैं ना हमारे, बिल्कुल। हम अब हमारी पार्टी एक मैनिफेस्टो के साथ और 10 नुकात के साथ इलेक्शन कैंपेन में गई, तो अगर उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अवाम से हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया। अगर हमारे मुखालफिन भी कहते हैं कि नहीं हम जमहूरियत के लिए कमिटेड हैं, तो फिर ये हमें तक़वियत मिलती है कि नहीं उस वक्त जो हम पे तनकीद हो रही थी वो गलत थी। लेकिन असल बात यह है कि वो जो हिमायत है वो लफ्जी है या अमली है। बहुत सी जगह वो अमली भी होती है, लोग कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं दूसरी जमात की, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो जमात पॉलिसी की हैसियत से अवाम की सियासत कर रही है या अशराफिया की सियासत कर रही है? अगर कोई जमात अशराफिया की सियासत कर रही है तो वो अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं पहुँचता। मुस्लिम लीग नून अशराफिया की जमात, अशराफिया की जमात है, अशराफिया की सियासत कर रही है, वो तो जाहिर है कि, और ऐसा हर मुल्क में होता है, एक जमात होती है जो, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम को जवाबदार है और उनका फ़र्ज़ है कि जो अवाम के हुकूक हैं और जो अवाम के मफादात हैं वो उनकी करें। मौसम के हवाले से अपडेट करें तो सूरज आग बरसाने लगा। मैदानी इलाके मुसलसल शदीद गर्मी की लपेट में हैं। अब तक सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। लाहौर, बहावलपुर, पाकपतन और सिबी में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। फैसलाबाद, डीजी खान, डीआई खान, कंबशादात कोट और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान, झंग और रहीम यार खान में 40, लिया और बन्नू 39, लाड़काना 38, पिशावर और सक्कर 37, जबकि इस्लामाबाद और नवाबशाह में 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। हैदराबाद में पारा 35 और कराची में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर फैसलाबाद में गर्म मौसम के बायस आज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जो बतदरीज 46 डिग्री तक जाएगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर जमान से। फैसलाबाद में आज दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान है और इस वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फैसलाबाद में बतदरीज गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे जो सेंट्रल पंजाब है उसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है और मौसम जो है अपने तेवर दिखा रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की है। शहजाद महमूद से मज़ीद जानते हैं। हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम बदस्तूर खुश्क और गर्म है। वादी पेशावर, मलकन डिवीज़न और बालाई इलाकों में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ गर्म हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी है। दोपहर के औकात में ख़ुसूसन सूरज पूरी तरह आबोताब दिखाने लगता है और यूँ गुमा होता है जैसे कुदरती कर्फ्यू का समा हो। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ एक इलाकों में कल से वक्फे से बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। पेशावर और गर्दनवां में इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर साफ है। सूरज की किरणें नमूदार हो चुकी है। गर्मी की शिद्दत दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जी, लोअर दीर में ओस्की गजा के पहाड़ों में लगी आग पर 4 रोज पर भी काबू ना पाया जा सका। तफसीलात क्या है जानेंगे हनीफुल्लाह से। जी हनीफ, बताइएगा। जी, लोअर दीर के गजो सकई पहाड़ों में लगी आग 4 रोज के बावजूद न बुझाया जा सका। रेस्क्यू 1112 FC लीवीज वाइल्ड लाइफ के सैकड़ों एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। गुज़श्ता रोज हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया था जिसने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। ताहम वसी इलाका पर आग फैलने, तेज हवाओं और शदीद गर्मी की वजह से आग पर ताहाल काबू पाया न जा सका। आग से कीमती दरख्त और जंगली हयात की जल गए हैं। ठीक है, 4 रोज गुजर गए लेकिन आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। बहुत शुक्रिया हनीफुल्लाह। जब बानी पीटीआई पर मुकदमा खत्म हो चुके थे तो खैबर मानिका ने नया तमाशा कर दिया। हमशीरा बानी पीटीआई अलीमा खान का कहना है कि साइफर केस को मजीद घसीटना नहीं जा सकता। वकील उस्मान गिल पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया है। अब हद हो चुकी है, हमारी आला जेल के बाद धरना दे देंगे।
خان نے اپنے سارے کیسز انہوں نے کہا کہ میں ان کا سامنا کروں گا. اب جب کیسز بالکل ختم ہو چکے تھے تو ایک تماشا خاور مانیکا نے عدت کیس میں کر دیا. وہ پلان کر کے آیا تھا کیونکہ اس دن فیصلہ سنایا جانا تھا. رہ گیا سائفر کیس اور گھسیٹ نہیں سکتے. آج کیس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو لائر تھا عثمان گیل اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا ہے. اب یہ بنانا چاہ رہے ہیں 1971 کا کیس. کیا ٹیکٹکس ان کو استعمال کرنی پڑی ہیں تاکہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے. لیکن اب حد ہو گئی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے, ہم اسی گرمی میں آ کے جب ناانصافی کا وقت شروع ہو رہا ہے ہم آ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اگر ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہو تو ہم سب تیار ہیں. اور جیل بھر دیں. 9 مئی کو ہوا تھا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. فیض عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ہم ان سے پھر سے ان کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن بنائیں. بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے معاملے پر تفتیش کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA سے ملنے سے انکار کر دیا. جیل ذرائع کے مطابق FIA سائبر کرائم ٹیم رات گئے اڈیالہ جیل پہنچی تو بانی پی ٹی آئی نے ملنے سے منع کر دیا. کہا کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا. FIA ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا. FIA ٹیم ریاست مخالف ویڈیو کی تشہیر پر تفتیش کر رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حیدرآباد میں گیس سلنڈر دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حادثے میں بچوں سمیت قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنجیدہ ہوں. یقین ہے کہ زخمیوں کے بہتر علاج میں کوئی کسر چھوڑی نہیں جائے گی. متعلقہ حکام تحقیقات کریں, مجرمانہ غفلت پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں. مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی امن و استحکام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. جنرل عاصم منیر نے دفاع و سلامتی کے شعبوں میں تعاون فراہم کرنے کے لیے ملک کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا اور آذربائیجان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی. آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف نے آذربائیجان کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر تعریف بھی کی اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف بھی کیا. نئے مالی سال 2024-25 میں ترقیاتی بجٹ 1220 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. جی شعیب, آگاہ کیجیے. جی, آج اینول پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں جو ہے وہ مختلف تجاویز پیش کی جائیں گی. تاریخ میں سب سے بڑے ترقیاتی بجٹ کے اوپر آج جو ہے وہ تجویز پیش کی جائے گی. جو مختلف تجاویز ہیں اس میں جو پہلی تجویز ہے اس کے مطابق تقریباً جو ہے وہ 1172 ارب روپے چاہیے ہوں گے 248 پروجیکٹس کے لیے, جبکہ دوسری تجویز میں 1500 ارب روپے چاہیے ہوں گے 628 منصوبوں کے لیے. اور اس میں مختلف پروجیکٹ شامل ہیں. تقریباً یہ بتایا گیا کہ جاری منصوبوں کے لیے 328 ارب روپے چاہیے ہوں گے, جبکہ نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 71 ارب روپے کی رقم چاہیے ہوگی. جو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پروگرام ہیں ان میں تقریباً 200 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے جائیں گے. APCC جو ہے آئندہ معاشی اہداف کا بھی جو ہے وہ جائزہ لے گی اور طے کرے گی, جس میں سب سے بڑا کوشش یہ کی جائے گی کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو 11.8% تک محدود کر دیا جائے. جی, شعیب نظامی اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.